Hello everyone, welcome to the session. In this session we are doing number theory revision. Okay, so देखो एक चीज़ थोड़ा समझते हैं. This is going to be an important session for all of the students who are looking for number revision and that too higher number. So higher number theory में एक जो बहुत important सा topic है that is the last two digits. ठीक है. How do we calculate last two digit? So typically questions that will be given to you all will sometimes will be of the form 736 raised to the power 56. This could be a question. Another question could be given to you 695 raised to the power, let's say 78. Let's say 2 raised to the power 789 or 86 or whichever. Or the most simpler one 31 raised to the power 125. तो कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं लास्ट टू डिजिट्स में. ठीक है. अब आप देख पा रहे होगे कि एक टिपिकली the type of question that it is representing, it is x raised to the power y का ही आपसे last two digit पूछा जा रहा है. And if I need to find out the last two digit of any number, this is as good as divide that by 100. So if they are directly asking you to there is a expression given to you and they're asking you to divide that by 100, basically they're also asking you to calculate the last two digit of it. Now here x is any number. I don't know anything about x. Depending upon the nature of x, there are a couple of things that we need to keep in mind. For example, in the same expression x raised to the power y upon 100, x can be, this is any number. Okay, this is any number, and depending on any number, obviously this could be of an odd number type or an even number type. Now these are a couple of properties that you have to remember, that if x is any number that is ending in, first we will discuss odd, then we will be discussing even. So if x is a number that in odd also, that is ending in 1 or it is ending in 5, मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं x जो आपने अभी देखा that will always end in 3, 7 and 9. 0 को हम लोग कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आपको लास्ट टू डिजिट निकालना है, 0 को स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, लास्ट टू डिजिट हमेशा 2 0 ही देगा. सो 0 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. 1, 3, 5, 7, 9 को कंसिडर करना है ऑड नंबर्स के केसेस में. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट. दिस इज मच ईजियर. ओके, दिस इज वेरी 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 इजी. Now for even number there is some other property. I'll talk about that in a while, but right now let's focus on this thing. The very first thing, ending in 1. This is the most important or most easy also you can say. So suppose I have an expression that ends, that is something like this, 31 raised to the power 125. ठीक है, and I need to find the last two digit of this expression. So what you need to understand is that पहली बात तो आप अपने आप को ये चीज़ लिख लो कहीं पे, या फिर आप keep a note of this thing, that last two digit of an expression depends on last two digit of the नंबर गिवन. ठीक है, सो लास्ट टू डिजिट किसी एक्सप्रेशन का लास्ट टू डिजिट पे ही डिपेंड करता है उस एक्सप्रेशन के. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग एट 31 raised to the power 125, so I just need to focus on the last two digits 25. So this can be reduced to 31 raised to the power 25. Now please pay attention. एक बहुत ही peculiar last two digit का pattern होता है, anything that when ends with 1, and that pattern is something like this. The last two digit of this expression will be, obviously last two digit, last number will be 1. ठीक है, but what about the second last number? The second last number you will get when you multiply 3 and 5, that is 15, and write 5. ठीक है, so I will write it over there. So this is 3 into 5 का जो 15 है, 15 का हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखा है 5. ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड होगा तो कुछ नंबर बनेगा, बट दिस इज अ ह्यूमंगसली बिग नंबर, यू कैन सी दैट, राइट. तो इस नंबर का हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता करना है, सिर्फ लास्ट टू डिजिट्स पता करना है. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. चलिए एक और करते हैं जल्दी जल्दी. आपको करना है ये, तो लेट्स से यू हैव अ नंबर 121 रेज टू द पावर 72. ठीक है, ऑब्वियसली दो ही लास्ट टू डिजिट के ऑप्शंस हैं, लास्ट डिजिट तो 1 ही होगा, एंड सेकंड लास्ट डिजिट विल बी 2 into 2, that is 4. ठीक है, सो दिस इज 41. नाउ एक आखिरी सवाल करते हैं. 81 raised to the power 1427. Again, this number is designed in such a way to deceive you. आपको डिसीव नहीं होना है, you just have to take care of this 27. इसका लास्ट टू डिजिट, ऑब्वियसली लास्ट डिजिट इज 1. सेकंड लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 into 8. ठीक है, 7 8 56, so it will be 61, and that's it. This is the most easy way how you can calculate. We can actually do many more practicing of this thing, but इतना काफ़ी है हमको समझने के लिए. अब ending in
379. So this is the next three numbers that we need to pay attention to. Here what you need to understand is that when a number ends in 3, 7 and 9, you have to pay attention. 3, 7 and 9 को हमने एक साथ क्लब किया है, एंड 5 को एक और साथ एक अलग नंबर्स में कैटेगराइज करेंगे. एक चीज़ ध्यान देना, अगर 3, 7, 9 नंबर्स हैं तो हम इसको इंटेलिजेंटली ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करेंगे इन सच ए वे दैट हमारा जो लास्ट डिजिट है इस तरह के एक्सप्रेशन का, बिकॉज रिमेंबर दिस इज नथिंग बट एक्स रेज टू द पावर वाई ना, तो एक्स को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि लास्ट डिजिट एक्स का 1 आ जाए. कैसे आएगा 1 लास्ट डिजिट? हमको पता है साइकिल्स 3 का, 7 का, 9 का. 3 के जो साइकिल्स होते हैं वो 4 के होते हैं, 4 के साइकिल्स में 3 होता है. 7 के भी 4 के होता है, 4 के साइकिल में होता है 7 के जो एक्सपोनेंट्स हैं. एंड 9 इज ईजी, 9 के 2 के साइकिल्स में होता है. या cyclicity ends in cyclicity of this is 9 is 2. So all of these number 3 raised to the 4k, 7 raised to the 4k, 9 raised to the 4k ends in 1, and this is what we need to pay attention to. Whenever the numbers will end in 1, हम ये पीछे जो टेक्निक यूज किया है इस टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन, shall we? So the question that is given to you is 237 raised to the power 56. We need to find the last digit of this thing. How do we do that? तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था क्या करना है. आपको सबसे पहला चीज़ जो कंसिडर करना है, नंबर को रिड्यूस कर लीजिए जितना कर सकते हो. 7, ठीक है. सो 7 को कन्वर्ट करना है. सो इफ आई राइट दिस लाइक दिस, 37 रेज टू द पावर ऑफ 4, एंड 4 से ये डायरेक्ट चला जाता है 14 टाइम्स. ठीक है. सो अगर आपको 37 रेज टू द पावर 4 का वैल्यू पता है तब तो यू कैन वेरी इजीली डू इट. बट अगर पता नहीं है तो क्या करोगे? देखो, इसको करने के बहुत तरीके हैं. पहला चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना. दिस इज एक्चुअली 37 स्क्वायर इंटू 37 स्क्वायर, राइट? 37 स्क्वायर इंटू 37. तो अगर आपको 37 स्क्वायर पता है क्या है तो आप दोनों नंबर को साथ मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हो. एक तरीका तो ये है, चलो उसको भी कर लेते हैं. और एक तरीका है जहाँ पे आप 50k प्लस और माइनस 1 को यूज़ करते हो. ठीक है, यहाँ पे 50k प्लस और माइनस 1 का फंडा यूज़ होता है. कुछ किताब ऐसे भी सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ. आपको 37 को 4 पावर में ब्रेक करना है सच दैट लास्ट डिजिट 1 आ जाए. तो एक काम करते हैं, 37 को क्रिस क्रॉस करते हैं. 7 7 से 49, 4. ठीक है, 7 7 से 49, 4. 21 21 इज 42 प्लस 4, 42 प्लस 4 इज 46. जस्ट कीप इट एट इट एज इट इज. 69 इंटू 69, क्योंकि रिमेंबर 37 का स्क्वायर इंटू 37 का स्क्वायर था ना, तो इफेक्टिवली हमको 67 का स्क्वायर निकालना है. तो 67, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 69 का स्क्वायर निकालना है. 9 9 81, 8, 6 9 54, 54 54. So this is 6 1. ठीक है, यहाँ पे ये 6 1 आएगा. एंड प्लीज रिमेंबर आई एम जस्ट लुकिंग एट द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस. आई एम नॉट इवन डूइंग द एंटायर मल्टीप्लिकेशन. अगर किसी ने मल्टीप्लिकेशन किया होगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता होगा कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज 61 रेज टू द पावर 14 एंड दैट्स इट. अब आप यूज करिए अपना ये वाला फंडा, हमने अभी किया था ना, व्हेन इट एंड्स इन 1. कैसे करेंगे? लास्ट डिजिट विल बी 1 एंड 4 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 6, तो 4 6 24, दिस इज 41, दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, अब एक चीज देखो, एक फंडा होता है कि अगर यहाँ पे चाहो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो. 37 को बिना क्रिस क्रॉस किए अगर आपको थोड़ा और बेहतर सिंप्लीफाई करना है तो हाउ कैन यू डू दैट? तो 50m प्लस और माइनस k द होल स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं दैट आर ऑलवेज सेम. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 37 का जो लास्ट 2 डिजिट होगा, 37 स्क्वायर का, प्लीज माइंड दिस थिंग, 37 स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा 63 स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के स्क्वायर के. ठीक है, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग लास्ट 2 डिजिट्स. ठीक है, L2D आई एम राइटिंग इट फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक है, L2D लास्ट 2 डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं. चलिए एक बार आपके लिए 37 37 7 7 से 49, 4 21 अभी किया था ना इसको हमने, सी 69 आएगा. फिर से कर लेते चलो, 49 4 21 21 42, 42 प्लस 4 इज 46, सो 69. ठीक है, चलो 69 63 को कर लेते हैं. 63 63 3 3 9, 18 एंड 18 36, 36 का 6. आप देख सकते हो कि 37 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, 63 का जो स्क्वायर है उसका लास्ट 2 डिजिट एग्जैक्टली सेम है, दैट इज 69. तो हम क्या इससे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि 50m प्लस और माइनस k का जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को यहाँ पे 37 गिवन है, सो आई कैन 50 माइनस 37 इफ आई एम अ लिटिल क्विक. एंड ये नंबर इसलिए भी दिया जाता है ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए. ठीक है, तो 50 माइनस 30 इज 20, 20 माइनस
7 इज 13। तो अगर आपको 13 का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट पता है तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि दिस वुड हैव बीन, you know, 13 square is 169, so 69 would have been the last two digit, but this is 37 का whole raised to the power 4। तो अल्टीमेटली आप यहाँ आ जाते हैं कि 69 इंटू 69। अब 69 का भी देखो, 69 को भी अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे 50 प्लस 19, सो 19 स्क्वायर का जो लास्ट टू डिजिट होता है वो आपका लेट्स से वो 69 के लास्ट टू डिजिट का स्क्वायर बन जाता, मतलब 69 के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट बन जाता। तो 19 9 9 81 8 9 9 18 प्लस 8 इज 61। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप कुछ भी करो, कोई सा भी मेथड लगाओ, आप रीच वहीं कर जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 37 रेज़ टू द पावर 4 गिवन है तो ये सब ये 50 m प्लस वो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 37 को क्रिस क्रॉस करो और आप 61 पे आ जाएगा। 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा बट यू विल गेट टू दी आंसर स्विफ्टली। ठीक है, और यही फंडा हम लोग 3 के लिए भी करेंगे और इसके लिए भी करेंगे, 9 के लिए भी करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। The question says 33 raised to the power 257। ठीक है, कैसे करना है इसको, देखो 257, 3 का साइकिल क्या है 4 है, 3 का साइक्लिसिटी 4 है, 4 से जाएगा क्या। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते चीज़ों को, तो बियॉन्ड अ पॉइंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखते हैं 33 रेज टू द पावर 4 एंड 4 6 24, 4 3 12, 4 4 16 एंड 1, सो एक 33 बाहर रहेगा एंड वी नीड टू कैलकुलेट द दिस थिंग। अब देखो मुझे इस एक्सप्रेशन का लास्ट टू डिजिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया ना 33 स्क्वायर का स्क्वायर होगा 33 का, 3 3 9, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 50 माइनस 33, 50 माइनस 30 20 माइनस 3 17। सो बट अगर याद है 17 का स्क्वायर इज 289। ठीक है, देन इट विल हेल्प यू, इफ यू डोंट रिमेंबर इट देन इट माइट नॉट हेल्प यू, देन आपको क्रिस क्रॉस कर ही लेना चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू मेक सेंस। देखिए, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 17 इंटू 7, बिकॉज चलो एक काम करते हैं, मैं अपने मेथड से पहले बता देता हूँ, फिर आपको 50 m प्लस और माइनस 1 से भी बताऊंगा। तो पहले आप 33 को क्रिस क्रॉस कर लो, 9 3 3 9 9 9 18, सो 18 दैट मीन्स 89। ठीक है, 89 को रहने दो, सो 89 इंटू 89 फिर से क्रिस क्रॉस करना है, 9 9 81 8, दिस इज हाउ मच 72 72 72 72 वुड बी 4 4 एंड 8 इज 32 21। ठीक है, राइट 21 raised to the power of 64 into 33। Now this is the last two digit of this expression would be 1 into 4 to the 8, 81 into 33। Now 81 into 33 कर लो, 81 into 33, this is 3, this is 24 and 3, 24 and 3 is 27, so 73, 73 would be the last two digit of this expression। आप चाहो तो इसको आपके किसी भी मेथड से आप इसको बाइनोमियल थ्योरम फलाना ढिमकाना करके आप इसको कर सकते हो, that will give you the answer absolutely this one। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा था 50 m प्लस और माइनस 1 से अगर करना है, मतलब चाहते हो उस मेथड को यूज़ करना, तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में दिखाऊं, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। सो इफेक्टिवली होता ये है कि अगर आपने रटा हुआ है कुछ वैल्यूज़ तो दैट कैन हेल्प यू। 33 को भी मैंने क्या बोला, 50 माइनस 33, 50 माइनस 33 का जो स्क्वायर होगा वो ही 33 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट के इक्वल होगा। सो 50 माइनस 30 इज 20, 20 माइनस 3 इज 17। सो 17 का जो लेट्स से स्क्वायर होगा उसका लास्ट टू डिजिट भी 33 स्क्वायर के लास्ट टू डिजिट के इक्विवेलेंट होगा। हमको पता है 17 स्क्वायर इज 18 289, सो 17 स्क्वायर का 289 है तो लास्ट टू डिजिट विल बी 89। ठीक है, अब 89 रिमेंबर 33 4 टाइम्स है ना, 33 रेज टू पावर 4 है, तो 89 इंटू 89 और 89 स्क्वायर है, तो 89 स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 89 भी कर सकते हो, क्योंकि 50 m प्लस और माइनस के है रिमेंबर, तो 100 माइनस 80 इज 20, 20 माइनस 9 इज 11। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 1 10, 10 करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। 11 का 121 होता है ना, 11 का स्क्वायर का 121 होता है लास्ट टू डिजिट। तो अगर आप थोड़ा सा ये वाला प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा समझ में आता है तो आप ये 50 m प्लस और माइनस के करके भी आप ला सकते हो अपना आंसर, आंसर में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मेरा मानो क्रिस क्रॉस करो, निकल जाओ आगे। आई होप दैट मेड सेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव रीच टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विच इज़ द ऑड नंबर एंडिंग इन 5। ठीक है, ऑड एंडिंग इन 5। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक्स रेज टू द पावर 5 में जो बेस है वो ऑड नंबर है, 1 डिस्कस कर चुके हैं, 3 7 9 डिस्कस कर चुके हैं, अब 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है, इसको थोड़ा याद रखने का तरीका भी पिक्यूलियर है। 5 का जो
यू नो अगर आप पावर साइकिल को देखो तो 5 रेज टू 1 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है। तो कुछ इस तरह का पिक्यूलियर साइकिल है, 25, 125 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि नंबर तो 5 का मल्टीपल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूँ, सपोज आई हैव अ नंबर गिवन टू मी समथिंग लाइक दिस, A, B, C and 5, these are all digits mind you, A, B, C are digits and 5, and this raised to the power of an even, and A, B, C 5 this raised to the power of an odd। तो दो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इफ़ दिस इज़ अ केस व्हेन ए बी सी 5 रेज टू द पावर इवन है, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो, इट विल ऑलवेज एंड इन लास्ट टू डिजिट विल बी 25, इट विल ऑलवेज एंड इन 25। अच्छा, इसमें अगर इफ इट ए बी सी 5 रेज टू द पावर ऑड है, सो देन इट हैज़ टू पॉसिबिलिटीज। पहला पॉसिबिलिटी है कि चेक सी, ठीक है, वी विल चेक सी, दिस नंबर कैन ऑल्सो बी इवन और ऑड, ठीक है। तो इफ सी इज इवन देन इट विल एंड इन 25 एंड चेक सी इफ दिस इज ऑड देन इट विल एंड इन 75। और अगर इसको थोड़ा याद रखने में आसानी आपको चाहिए तो मैं आपको ऐसे बता दूं, ए बी सी टू द इवन पे 25 होता है, और ए बी सी टू द ऑड पे सी अगर इवन है तो भी 25 होगा, बट अगर ये ऑड है, ए बी सी में लास्ट इज ऑड, देन यू विल हैव द लास्ट डिजिट एंडिंग इन 75। ये एक पिक्यूलियर सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। आई होप दिस मेड सेंस, और बस इतना याद रखोगे तो पूरा काम हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट समटाइम्स आर नॉट वेरी ओके विद बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो लास्ट है, व्हेन हमने अभी डिस्कस किया x रेज़ टू पावर ऑड को, अब व्हाट हैपेंस इफ दिस इज इवन, x इज एन इवन नंबर, व्हाट हैपेंस देन, लेट्स डू दिस, ठीक है। सो x रेज़ टू द पावर ऑफ y, लास्ट टू डिजिट कैलकुलेट करना है, x इज अ इवन नंबर नाउ। Now you don't have to remember anything, all you need to understand is that 1024 raised to the power of even, this will help you immensely, 1024 raised to the power even ends in end in 76, 1024 raised to the power of odd, any odd number will end in 24। ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1024 इज़ नथिंग बट 2 रेज टू द पावर ऑफ 10, दिस इज ऑल्सो 2 रेज टू द पावर ऑफ 10। और अगर आप यहाँ से थोड़ा नोटिस करोगे, 24, आप इसको लास्ट टू डिजिट ही कैलकुलेट करना है ना, 24 ही एक्सप्रेस कर सकते हो, 24 1 इज 24, ठीक है, लास्ट टू डिजिट 24 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट विल बी 76। आप इसको चेक कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 50 माइनस 24 करके, 50 माइनस 20 इज 30, 30 माइनस 4 इज 26 का स्क्वायर, 26। डू आई रिमेंबर द वैल्यू ऑफ 26? नो, बट आई थिंक, चलो ना कर कैलकुलेट कर लेते हैं, 26 6 इज 36, 3 12, 12 एंड 12 24, 24 प्लस 3 27, ठीक है, क्रिस क्रॉस किया वेरिफिकेशन के लिए, तो ठीक है, वेरीफाई कर लिया, ये भी आंसर आपको मिल गया। नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू गेट टू सम वैल्यू। चलिए, आई होप दिस सेशन मेड सम सेंस टू यू। कुछ क्वेश्चन लेंगे अब हम, just to further build up on this topic and see if there is anything that we still need to focus on. um, let me see that if I have the questions ready with me. Where is the book? Yeah, this is the book. Take a couple of questions. ठीक है, आई विल जूम इन जूम आउट व्हेनेवर आई फील नेसेसरी। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम शुरू करने से पहले हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ही थोड़ा टच करते हैं ताकि आपको सोल्यूशन मैं ऑन द स्पॉट दिखा सकूं। तो ओके, आई डोंट थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि व्हाट आर द लास्ट टू डिजिट व्हेन 37 रेज टू द पावर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक। आप चाहो तो पॉज करके आंसर पढ़ सकते हो, बट मेरे साथ मतलब लेट्स सॉल्व इट टुगेदर सो दैट वी विल बी एट अ बेटर स्पेस। तो
I hope you can see this. तो 37 रेज टू द पावर ऑफ 1 2 3 4 5. अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि लास्ट टू डिजिट डिपेंड्स ऑन द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन. सो दिस बेसिकली मीन्स दैट दिस थिंग बॉइल्स डाउन टू 37 रेज टू द पावर ऑफ 4 5. ठीक है, 7 का साइक्लिसिटी याद है 4 होता है, तो विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 4. सो 37 रेज टू द पावर ऑफ 4 होल रेज टू द पावर ऑफ 11.37. Now we need to find the last digit of this expression. How do we do that? Either you can do 50 minus 37. 50 minus 30 is 20. 20 minus 7 is 13. So 13 किस स्क्वायर का? That is 69. मैं कर क्या रहा हूँ मैं फिर से बता दूँ. This is 37 square into 37 square. ठीक है, 37 square raised to the power of 11.37. 37 स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था ना 50 m प्लस और माइनस 1 से हम लोग लास्ट टू डिजिट प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो 50 माइनस 30 इज 20. 20 माइनस 7 इज 13. सो दिस इज गोइंग टू बी 13 स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट. 13 स्क्वायर का होगा 69. सो यहाँ से 69 मिलेगा, यहाँ से 69 मिलेगा. दैट इज 69 का स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन इनटू 37. 69 को हम लोग 50 प्लस 19 भी बोल सकते हैं. नाउ इफ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ 19 स्क्वायर दैट इज 361. सो लास्ट टू डिजिट विल बी 61 रेज टू द पावर ऑफ 11 इनटू 37. ठीक है, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्रिस क्रॉस करके कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू बी 61 raised to the power, so 1 into 6, that is 6 itself, into 37. So we can, at this point we can use crisscross. 61 into 37, so this is 7. 6 and 42, 42 plus 3 is 45. 57 should be the answer. ठीक है, and yes, indeed it ends in 57. इन्होंने कुछ एक तरीका बताया है. 37 raised to the power of 20 ends in 01. देखो, अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वाई आर दे यूजिंग 37 raised to the power 20 ends in 01 and all that. ये सब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट डिफरेंट फंडे हैं, तो वो आप कर सकते हो. लेट्स